Assalamu alaikum everyone. Welcome to Z Foundation. I'm Chaman Zahara. I'm a spoken English trainer from past 5 years and my education is MPhil English Literature. I have diverse sort of experience of teaching different students belonging to different backgrounds in fields like doctors, professionals of all kinds, housewives, kids, and students of almost all age groups. Now, what we are going to discuss in today's video is that we are going to start our trial class for the upcoming spoken English course offered by Z Foundation. That is going to last for 3 months. ठीक है, 3 महीनों का हमारा कोर्स होगा जिसके अंदर एक्सटेंसिव प्रैक्टिस और राइट मेथोलॉजी के साथ हम आपको इंग्लिश सिखाएंगे. ओके, सो ये हमारी ग्रुप क्लासेस होंगी. सबसे पहली बात that you need to understand is that it's not how much you study English, but how you study it. The right method makes all the difference. अब like maybe you people have experienced that there are plenty of people they just do a lot of practice every day. Daily base पे वो बहुत ज़्यादा practice करते हैं English language की. They do it with friends, they do it solo, alone भी वो मतलब practice करते हैं. They read a lot, they write a lot, they listen, they speak. लेकिन उसके बावजूद they just go to different institutions and they say that कि हम इतनी प्रैक्टिस करते हैं लेकिन इसके बावजूद we can't speak with confidence or maybe fluency. Everyone got a different problem. ठीक है, तो ये मसला क्यों आता है? बिकॉज नॉट एवरीथिंग इज फॉर एवरीवन. हर एक चीज हर इंसान के लिए नहीं होती. वी ऑल आर डिफरेंट लर्नर्स, वी ऑल हैव डिफरेंट बैकग्राउंड्स, वी ऑल हैव डिफरेंट लेवल्स. अकॉर्डिंग टू दैट अ टीचर कैन डिजाइन अ परफेक्ट स्ट्रैटेजी फॉर यू कि क्या चीज आपके लिए काम करेगी. ठीक है, बिकॉज दिस इज द ट्रायल क्लास सो आई हैव टू यूज बोथ लैंग्वेजेस सो दैट एवरीवन इज गोइंग टू अंडरस्टैंड मी. ठीक है, बट इन नेक्स्ट इन द क्लासेस अकॉर्डिंग टू योर प्रेफरेंस, अगर आप लोग कहेंगे कि आई शुड स्पीक ओनली इन इंग्लिश देन आई एम गोइंग टू यूटिलाइज ओनली इंग्लिश. But if you people say will say that ke, you have to use 50% English, 50% Urdu, so according to that I will move because I offer individual classes as well. तो individual classes में हर एक चीज़ आपके according होती है. टाइम, अब मेरी फ्लुएंसी मतलब कि मैं फास्ट बोलूँ, स्लो बोलूँ या उससे भी कम, कितनी उर्दू बोलूँ, कितनी इंग्लिश बोलूँ, एवरीथिंग इज गोइंग टू बी डिसाइडेड बाय यू. ठीक है, अच्छा. तो नाउ ये जो कोर्स हमारा है 3 मंथ्स का, इट इज गोइंग टू टीच यू दैट व्हाट इज द राइट मेथड फॉर यू टू actually learn that language. Because maybe you people have experienced that you people spend a lot of time on learning English grammar, you people took plenty of courses, but still you people think that you are not at your desired level. जो level आपको चाहिए था regarding spoken English mastery वो आपका नहीं हो रहा. So that is what we are going to dig up in this course. ठीक है, ताकि आपको आपके weak areas पता चले, so you can know that where is the actual problem, and according to that I will be able to tell you the solution. क्योंकि हम variety of practices हम यहाँ पे classes के अंदर करेंगे, so you people are going to know better कि क्या चीज़ आपके लिए ज़्यादा work कर रही है. because I'm going to give you regular feedback as well कि आप कैसे improve कर रहे हो, कहाँ पे आपको mistakes आ रही हैं, and what is the next step that you need to take. ठीक है, so what is the reality, what is the fact is that you don't struggle with English, you struggle with the wrong way of learning it. ठीक है, हमारे पास बहुत सी myths हैं that we are going to just dispel in this course. okay, तो यहाँ पे हमने हमेशा एक लाइन सुनी थी कि practice makes man perfect. अगर ऐसा होता तो everyone was going to be a master of his field by the by like following the same methodology that other people ऑफ हिज फील्ड वर्ड फॉलोइंग. ठीक है, कि एक बंदा जिस फील्ड में जो मेथोडोलॉजी से काम कर रहा था, दूसरा बंदा भी अगर उसी स्ट्रैटेजी के साथ काम करता तो हर एक मास्टर हो जाता. लेकिन ऐसा नहीं होता. इवन अगर कोई चीज है एंड समवन इज डूइंग इट वेरी गुड, तो हम जाते हैं, वी आस्क हिम दैट व्हाट इज योर मेथड एंड हाउ यू डू इट. वो हमें बताता है, वी फॉलो द सेम पैटर्न बट स्टिल वी फेल. क्यों? क्योंकि नॉट एवरीथिंग इज फॉर एवरीवन. तो हमें देखना होता है कि क्या चीज़ मेरे लिए ज़्यादा सूटेबल है. ठीक है, सो आपने हमेशा ये लाइन अब करेक्ट याद रखनी है कि परफेक्ट प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट. एंड हु इज गोइंग टू टेल यू दैट व्हाट इज द गुड प्रैक्टिस फॉर यू, दैट इज गोइंग टू बी टोल्ड टू यू बाय योर टीचर. अगर वो मतलब कि रियलिटी में ही एक ट्रेनर है, अच्छा ट्रेनर है जिसको पता है कि कैसे पढ़ाना है और बच्चे का लेवल कैसे असेस करना है. ठीक है, तो आज जो हम सबसे पहले चीज़ पढ़ेंगे वो है फॉर्म्स ऑफ वर्ड्स, जो कि मुझे ऐसा लगता है कि मेजोरिटी ऑफ द पीपल दे डोंट नो अबाउट इट, जिसकी वजह से वाइल स्पीकिंग दे मेक सर्टन मिस्टेक्स रिगार्डिंग द यूसेज ऑफ डिफरेंट वर्ड्स. वो वोकैबुलरी के यूसेज में वो डिफरेंट मतलब कि एरर्स करते हैं, उनके अंदर बहुत मिस्टेक्स करते हैं.
ठीक है, तो उसको उस चीज को कम करने के लिए आई हैव एडेड दिस थिंग इन द लेक्चर. सो क्या होता है कि रूट वर्ड कैन चेंज इनटू डिफरेंट फॉर्म्स, नाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, एंड ईच फॉर्म slightly changes the meaning and function of the word in a sentence. Because we know that parts of speech are the basic building blocks of a language, और especially of the English language. तो उसमें हमारे पास क्या होता है कि there are certain words that we utilize in a sentence in order to convey our meaning. And why there are different parts of speech? क्योंकि there are 8 to 9 parts of speech. तो हर एक है तो वर्ड है ना, इंग्लिश का हर एक वर्ड है, बट वाई दे आर डिवाइडेड इनटू 9 टाइप्स? जस्ट बिकॉज ऑफ देयर फंक्शनैलिटी, दैट व्हाट इज द फंक्शन दैट दे आर ट्राइंग टू प्ले इन द सेंटेंस. सेंटेंस के अंदर वो अपना कौन सा रोल अदा करे, उसके बेस पे हम पार्ट्स ऑफ स्पीच को हमने डिवाइड किया हुआ है. अब होता क्या है कि हमारे पास जो एक वर्ड होता है उसकी कुछ पॉसिबल फॉर्म्स होती है. जैसे हमने हमेशा पढ़ा है कि वर्ब हैव 3 फॉर्म्स, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, सेकंड एंड थर्ड फॉर्म. सेम इज द केस विद द वर्ड्स. कुछ आपको ऐसे अल्फाज मिलेंगे जिनकी जस्ट 2 फॉर्म्स होती हैं, मतलब कि उनकी नाउन फॉर्म और वर्ब फॉर्म हो सकती है, और कुछ ऐसे होंगे जिनकी मे बी एडजेक्टिव एंड नाउन हो, किसी की जस्ट वर्ब एंड एडवर्ब हो. ठीक है, इट डिपेंड्स अपॉन द वर्ड. लेकिन कुछ ऐसे भी वर्ड्स हैं जिनकी ये चारों फॉर्म्स होती हैं. सो अकॉर्डिंग टू द मीनिंग दैट यू वांट टू कन्वे टू योर ऑडियंस, आपने उस वर्ड को यूटिलाइज करना होता है. ठीक है, तो अब इसमें क्या चीज आती है कि आपने जब यू हैव टू बी कॉन्शियस अबाउट योर वर्ड चॉइस. जब आप बोल रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि व्हाट यू वांट टू स्पीक एंड विच सॉर्ट ऑफ वर्ड आई नीड टू यूटिलाइज इन माय दिस सेंटेंस. ओके, सो दिस इज नॉट जस्ट ग्रामर, इट्स मीनिंग कंट्रोल. आप इससे नेक्स्ट बंदे को पता चलेगा व्हाट यू आर ट्राइंग टू एक्चुअली से. जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक वर्ड है डिसाइड. ठीक है, डिसाइड की एक पूरी फैमिली है, इसके अंदर 4 इसके हमारे पास वेरिएंट्स आती हैं. फर्स्ट क्या होता है कि डिसाइड. डिसाइड एक वर्ब है, मतलब कि ये एक एक्शन है, टू मेक अ चॉइस. जब आप कोई काम कर रहे हैं मतलब कि वो हम वर्ब कहलाता है. ठीक है, राइट, उसको हम वर्ब बोलते हैं. तो डिसाइड करना, फैसले करने के अमल को हम क्या कहते हैं? वर्ब. तो ये डिसाइड हमारा एक वर्ब है. लेकिन वहीं पे हमारा सेकंड इसका वर्ड आ जाता है डिसीजन. ठीक है, तो जो डिसीजन है ये नाउन है, ये फैसला जो है उसका नाम है. दैट्स व्हाई इट इज ओनली अ नाउन. तो जहां पे आप किसी सेंटेंस के अंदर किसी बंदे की बात कर रहे हो कि उसने ये फैसला किया, तो आपने वहां पे डिसीजन नहीं लगाना, आपको क्या करना होगा? डिसाइड लगाना होगा. ठीक है, ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको होनी चाहिए. उसके अलावा डिसाइसिव, ये एडजेक्टिव है. एक ऐसा बंदा जो अपने फैसले पे पूरा उतरता है या उसके अंदर एक फैसला करने की ताकत होती है, आप उसको हम कह सकते हैं कि ही इज वेरी डिसाइसिव. ठीक है, तो अब आपने अगर किसी की फैसला करने की ताकत के बेस पे उसकी तारीफ करनी है तो फिर आपने डिसाइसिव लगाना है. ठीक है, ओके. उसके बाद डिसाइसिवली के इन अ फेम वे, कि उसने बड़े अच्छे तरीके से, और हम कह सकते हैं कि ऐसे एक बंदा होता है डिटर्मिनेशन वाला जो पीछे नहीं हटता अपने फैसले से, तो उस बंदे के लिए आपने ये कहना है कि ही ऑलवेज, और या फिर आप कह सकते हैं कि ही मेड दिस प्लान डिसाइसिवली, इस तरह भी आप कह सकते हो. या मतलब कि आपने क्या करना है कि जब आप या वर्ब लगा रहे हो कहीं पे, तो उसके लिए हम एडवर्ब लगाते हैं. अब अगर आप लोगों को पार्ट्स ऑफ स्पीच का नहीं पता कि व्हाट इज नाउन, व्हाट इज वर्ब, व्हाट इज प्रपोजिशन, तो फिर आप लोगों के लिए ये चीज अभी थोड़ी सी टफ होगी, या फिर ऐसा लगेगा कि पता नहीं क्या कह रही है मैम, राइट. बट विद द पैसेज ऑफ टाइम, एज सून एज यू आर गोइंग टू लर्न द पार्ट्स ऑफ स्पीच, तो फिर आप लोगों को पता चल जाएगा कि व्हाट आई वाज ट्राइंग टू से, कि ये वर्ब फॉर्म है, ये नाउन फॉर्म है, ये एडजेक्टिव फॉर्म है, ये एडवर्ब फॉर्म है. बात बताने का मकसद ये है कि जहां पे जो बात आपने करनी है ना, उसके अकॉर्डिंग आपने वर्ड लगाना. अब ये ना हो कि आपने एडवर्ब लगाना हो डिसाइसिवली और वहां पे आप डिसाइड लगा दें. ठीक है, उसके बाद आपके जैसे सेंटेंसेस हैं, शी डिसाइडेड टू लीव अर्ली, उसने फैसला किया कि वो जल्दी चली जाएगी. हर डिसीजन सरप्राइज एवरीवन, उसका जो फैसला था उसने सबको सरप्राइज कर दिया. ही इज वेरी डिसाइसिव इन टफ सिचुएशन, तो वो हमेशा बड़ा डिसाइसिव होता है कि जल्दी से अपना आराम सुकून से अच्छा फैसला ले लेता है टफ सिचुएशंस में. शी स्पोक डिसाइसिवली ड्यूरिंग द मीटिंग, उसने बड़ा ना मतलब फैसला कुन अंदाज में वो मीटिंग के अंदर बोल रही थी. ठीक है, तो हमने क्या किया कि पहले वाले में एक्शन था, फिर सेकंड वाले में हमने जस्ट नाउन डिसीजन की बात की, फिर हमने क्वालिटी, किसी की कैरेक्टरिस्टिक, किसी का एडजेक्टिव बताया, और फिर हमने मैनर बताया कि किस चीज में बात, किस तरह बात की गई. ठीक है, उसके अलावा प्रोड्यूस फैमिली, हमारी वीडियो लंबी ना हो, सो दैट्स व्हाई आई एम ट्राइंग कि हम इसको आगे फास्ट फास्ट लेके चलें. लेकिन अगर आप ये वीडियो पूरी देख लेंगे तो यू आर गोइंग टू लर्न प्लेंटी ऑफ न्यू थिंग्स, दैट इज व्हाट आई कैन गारंटी यू. उसके बाद प्रोड्यूस की फैमिली, प्रोड्यूस वर्ब है, प्रोडक्ट नाउन है, प्रोडक्शन भी नाउन है,
और उसके बाद प्रोडक्टिव एडजेक्टिव है। अब यहाँ पे देखिए प्रोडक्ट नाउन और प्रोडक्शन बी नाउन है, ये अकॉर्डिंग टू द कंटेक्स्ट इस्तेमाल होगा। ठीक है, क्या आप बात करना चाह रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आपने प्रोडक्ट एंड प्रोडक्शन को लगाना है। ठीक है, क्योंकि जो प्रोडक्ट है वो रिजल्ट है कि वी मेड दिस प्रोडक्ट, हमने ये प्रोडक्ट बनाई। और फिर हम ये कह सकते हैं कि पूरा जो उस प्रोडक्ट को बनाने का प्रोसेस था दैट इज प्रोडक्शन। ठीक है, जैसे आपने ये कह सकते द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ दिस प्रोडक्ट वाज वेरी टफ। ठीक है, तो इस तरह करके आपने इन सारी चीजों को इस्तेमाल करना है। प्रोडक्टिव एक ऐसा वर्ड है दैट इज वेरी गुड अकॉर्डिंग टू माई पॉइंट ऑफ व्यू एंड आई यूज इट अलॉट, क्योंकि हम ऐसे इंसान के लिए लगाते हैं कि जो बड़ा इफिशियंट होता है, जो बहुत अच्छे काम करता है, प्रोडक्टिव चीजें करता है, ना कि टाइम वेस्ट करता है। ठीक है, तो ये की पॉइंट आपने याद रखना है कि चेंजिंग वर्ड फ्रॉम डजंट जस्ट चेंज ग्रामर, इट चेंजेस मीनिंग, टोन एंड प्रिसिजन। ठीक है, जो बात आप कर रहे हैं उस चीज के ऊपर आपके वर्ड यूसेज का बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। उसके बाद हम एक और चीज न्यू सीखते हैं दैट इज लॉन्ग एंड शॉर्ट वोवल साउंड्स, और इसका भी आपकी प्रोनाउंसिएशन पे और आपके मीनिंग पे बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। ठीक है, तो हमारे पास जो वोवल साउंड्स हैं उनकी डिफरेंट प्रोनाउंसिएशन होती हैं अकॉर्डिंग टू देयर स्पेलिंग, कि वो वर्ड के अंदर कहाँ पे आ रहे हैं, कॉन्सोनेंट के दरमियान में आ रहे हैं या कॉन्सोनेंट के बाद में आ रहे हैं या उससे पहले आ रहे हैं। अकॉर्डिंग टू दैट वी हैव टू डिसाइड दैट वी हैव टू प्रोनाउंस इट लॉन्गर और शॉर्टर। शॉर्टर साउंड ऐसा होता है कि एक वर्ड के अंदर जब एक वोवल साउंड आ रहा है उसके पास थोड़ी सी आवाज टच हुई है, सो दैट इज अ शॉर्ट साउंड। जहां पे आप उसको प्रॉपरली वॉइस देते हो, यू गिव अ वॉइस, प्रॉपर वॉइस टू द वोवल साउंड, दैट इज अ लॉन्गेस्ट साउंड। जैसे अभी हम देख लेते हैं शॉर्ट हमारे पास वोवल साउंड है, जैसे कैट, बैट, मैप, एह, इसमें एक बहुत ही शॉर्ट साउंड आ रही है। इसी तरह जो ई है इसी की पैन, बैड, सिट, बिट, हॉट, नॉट, कप, लक, इन सब के अंदर ये जो सारे वॉवल साउंड्स है आ ई आई ओ यू, इन सब की बहुत ही शॉर्ट साउंड आ रही है, बस हम उसको टच करके आगे जा रहे हैं। लेकिन इन्हीं वर्ड्स की अब हम देखते हैं कि लॉन्ग साउंड कैसे होगी, जैसे केक। अब देखिए जब हम कह रहे हैं कैट और जब हम कह रहे हैं केक, कैट में हम जल्दी से वर्ड को प्रोनाउंस करें, बट हम जब कह रहे हैं केक तो ए का इस तरह करके हम उसका लंबा साउंड जो है वो प्रोड्यूस करें। इसी तरह मेक या सी, मीट, टाइम, काइट, होम, नोट, यूज, क्यूब। अब इसके अंदर क्या है कि ये बल्कि आपको मैं ये बता दूं कि केक, सी, टाइम, होम एंड यूज, उसके अंदर फिर भी इनका थोड़ा कम साउंड आ रहा है। ठीक है, लेकिन जो मेक, मीट, काइट, नोट, क्यूब, इन सब के अंदर उसका फर्दर इनहेंस होके साउंड आ रहा है। ठीक है, ये आपने हमेशा याद रखनी है कि जो 4 लेटर वाला वर्ड होता है ना, जिसके अंदर 4 अल्फाबेट्स हो, जैसे MAKE, और इसके अंदर अगर एंड पे ई आ रहा है, उससे पहले एक कॉन्सोनेंट आ रहा है, कोई भी कॉन्सोनेंट आ रहा है, एस आ रहा है, पी आ रहा है, एम आ रहा है, एनी, और उससे पहले वोवल साउंड आ रहा है, तो वहां पे वो हमेशा लॉन्गर साउंड करेगा। ठीक है, अच्छा, उसके अलावा ये बल्कि यहाँ पे बता भी दिया साइलेंट ई रूल। ठीक है, जब एंड पे ई आ जाएगा, अब देखिए पहले है कैप, लेकिन जब एंड पे ई आ गया तो ये बन गया केप। ठीक है, इसी तरह BIT बिट, यहाँ पे शॉर्ट साउंड है, लेकिन जब बाइट एंड पे ई आ गया उससे पहले टी एक कॉन्सोनेंट साउंड है और फिर हमारे पास आई है तो वहां पे उसका लॉन्ग साउंड है, बाइट, बिट, बाइट। आई होप सो दैट यू आर अंडरस्टैंडिंग द डिफरेंस। उसके बाद हमारे पास जैसे वॉवल पेयर्स हैं कि 2 वॉवल साउंड अगर इकट्ठे आ रहे हैं तो उनकी ज्यादातर ये होता है कि साउंड जो है वो लॉन्गर हो जाती है, जैसे रेन, AI का साउंड है, स्लीप, डबल ई है, उसके बाद बोर्ड, और है। ठीक है, तो ये मैं आपको क्यों बता रही हूँ, क्योंकि प्रोनाउंसिएशन का जो मुझे लगता है जिस चीज का इंग्लिश को सीखने में आपको मतलब सीखते टाइम सबसे ज्यादा ख्याल रखना चाहिए, दैट इज प्रोनाउंसिएशन, बिकॉज प्रोनाउंसिएशन मैटर्स अ लॉट। नाउ keep in mind that I'm not talking about the accent, I am talking about the pronunciation। pronunciation है कि एक वर्ड को जैसे उसकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है उस तरह आपने बोलना है। एक्सेंट इज लहजा। ठीक है, एक्सेंट इज समथिंग एल्स, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इट इन डिटेल इन आवर कोर्स। ठीक है, उसके बाद आप देखिए देखें, अब ये मिनिमल पेयर्स इस तरह के हैं जिनके अंदर अगर आप देखें ना तो शिप, शीप, ठीक है, ये थोड़े से हमारे पास सेम साउंड करते हैं, लेकिन अगर आप इनकी प्रोनाउंसिएशन चेंज कर देंगे तो वो उनका मीनिंग जो है वो चेंज हो जाएगा। अब जो पहला वाला शिप है उसको अगर आप सेकंड वाले शिप की तरह शीप पढ़ दें तो उसका मीनिंग चेंज हो जाएगा, उससे हमें ये पता चलेगा कि हम शिप की नहीं बल्कि शीप की बात करें। ठीक है, तो फुल, फूल, हैट,
हेट, नोट, नोट, नॉट, नोट। ठीक है, तो आई होप सो दैट कि ये हम विद द पैसेज ऑफ टाइम आपको प्रोनाउंसिएशन के डिफरेंट ट्रिक्स बताऊंगी कि हमने वर्ड स्ट्रेस को यूज करके अपने प्रोनाउंसिएशन को कैसे करेक्ट करना है। अच्छा, उसके अलावा कुछ कॉमन ग्रामर मिस्टेक्स हैं, ये इस तरह की हम बहुत सी चीजें लर्न करेंगे इन आवर कोर्स, ताकि आप जो बेसिक ग्रामर की मिस्टेक्स करते हैं व्हाइल स्पीकिंग, वी आर गोइंग टू ओवरकम दैम। ठीक है, जैसे आई एम हैविंग अ कार। अब जो हैविंग है ये एक पोजेशन शो करने वाला वर्ड है, सो वी कांट चेंज इट इनटू कंटीन्यूअस फॉर्म, उसके साथ आईएनजी नहीं लगा सकते। सो आपने कहना आई हैव अ कार, आई एम हैविंग अ कार नहीं कहना। ठीक है, इसके अलावा ही इज मोर स्मार्टर देन मी। अब जब ऑलरेडी आपने कह दिया कि स्मार्टर, देन व्हाई नीड टू ऐड मोर, तो ये डबल आपको कंपैरिजन हो जाता है। सो यू डोंट नीड टू पुट मोर हियर, जस्ट ही इज स्मार्टर देन मी। उसके बाद वन ऑफ माई फ्रेंड इज कमिंग। हम हमेशा तब भी वन की बात करते हैं जब ज्यादा सारे फ्रेंड्स हो, कि मेरे सारे फ्रेंड्स में से एक दोस्त मेरा आ रहा है। सो इट मीन्स कि हमने वन ऑफ माई फ्रेंड नहीं कहना, वन ऑफ माई फ्रेंड्स, कि मेरे जो दोस्त है उनके अंदर से एक आ रहा है, राइट? उन सब के ज्यादा सारे दोस्त हैं, उनमें से जस्ट वन इज कमिंग, तो वन ऑफ माई फ्रेंड्स इज कमिंग। ठीक है, वन ऑफ के बाद आपने हमेशा जो आपका नाउन होगा, जो आपका सब्जेक्ट होगा, दैट इज गोइंग टू बी प्लूरल। अब मैं इसको जल्दी जल्दी कर रही हूँ ताकि ज्यादा लंबी वो ना हो, लेकिन आई होप सो दैट यू पीपल आर लर्निंग एंड एंजॉयिंग इट। क्लास के अंदर हम बहुत सारा फन भी करेंगे एंड देयर आर गोइंग टू बी लाइक रियली रियली अमेजिंग क्लासेस फॉर यू पीपल। ओके, अच्छा, I did not know about it. We know that when there is did in the sentence, we need to put first form of the verb. I did not know about it. That is very simple and easy. लेकिन ये while speaking that is a really common mistake. हम जल्दी में बोल जाते हैं कि जैसे I did not knew it. ठीक है? अच्छा, उसके बाद है she is married with a doctor. That is a very common expression that we use every day. Married with a doctor. No, she is married to a doctor. अच्छा, so these are high level spoken errors common like even among advanced learners. लेकिन अगर जिस तरह मैं आपको पढ़ाऊंगी कॉन्शियस हो कि यू हैव टू स्पीक बट विदाउट लाइक बीइंग पैनिक कि मैं क्या करूं, मुझे तो ग्रामर आती नहीं है, मैं कैसे बोलूं, ये मुझे रूल भूल गया। सो विदाउट दीज थिंग्स वी हैव टू स्पीक करेक्ट इंग्लिश। उसके बाद नेक्स्ट पास है कॉन्टेक्स्ट बेस्ड वोकैबुलरी गेसिंग, दैट इज माय मोस्ट फेवरेट वन एंड आई जस्ट लव टू डू इट। ये आपको बहुत सारी कंडीशंस के अंदर हेल्प आउट करेगा, स्पेशली व्हेन यू आर रीडिंग समथिंग न्यू and you don't know different words, like you are unfamiliar with plenty of words from that page, एक पेज आप पढ़ रहे थे and there were like new words for you, so how you have to just manage to understand that what you are reading, क्योंकि हो सकता है at that time internet is not available and you can't go again and again to the Google and search the meaning of the word. So it is always best कि अपनी रीडिंग एक्टिविटी को डिस्टर्ब करने की बजाय आप कॉन्टेक्स्ट बेस्ड लर्निंग जो है वो कैबलरी की करें। उसमें आपने क्या करना होता है कि यू हैव टू रीड द होल सेंटेंस एंड अकॉर्ड यू हैव टू ट्राई टू मेक द सेंस ऑफ द सेंटेंस। आपने कोशिश करनी है कि यू हैव टू जज कि सेंटेंस में क्या कहा जा रहा है। सो अकॉर्डिंग टू द सराउंडिंग वर्ड, वो एक जो अनफेमिलियर वर्ड है उसके इर्द गिर्द जो वर्ड्स हैं, यू हैव टू ट्राई टू गेस द मीनिंग ऑफ दैट स्पेसिफिक वर्ड, किस वर्ड का क्या मीनिंग हो सकता है, एंड दैट इज क्वाइट इंटरेस्टिंग एक्टिविटी। ठीक है, वहां पे कोई डेफिनेशन या एग्जांपल, कंट्रास्ट, कॉज, इफेक्ट दिया होगा सेंटेंस के अंदर या इवन पैराग्राफ के अंदर, सो यू विल बी एबल टू गेस द मीनिंग। अब देखें हमारे पास है स्पीच वाज सो एलोक्वेंट that the audience remained silent, completely absorbed in his powerful words. अब ये देखिए, फॉर एग्जाम्पल यू डोंट नो दैट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एलोक्वेंट। ठीक है, तो यहाँ से आपको ये पता चला कि ऑडियंस रिमेन्ड साइलेंट, वो चुप रही, कंप्लीटली अब्सॉर्ब्ड इन हिज पावरफुल वर्ड्स। मतलब इसका मतलब है कि कुछ ऐसा लग रहा है कि उसकी ना स्पीच जो थी ना वो बड़ी अच्छी थी, दैट पीपल वर लिसनिंग इट विद फुल अटेंशन। थोड़ा बहुत आपको आइडिया मिल गया यहाँ से, फिर आपको आगे जैसे आप सोच सकते हो तो अच्छा इसका मतलब तक बड़ी फ्लुएंट एंड परसुएसिव थी। मतलब ऐसे थे कि लोग ना उसकी बात मान रहे थे, वो लोग बहुत इंटरेस्ट लेके उसकी बात जो है वो सुन रहे थे। तो इससे आपको पता चल गया कि एलोक्वेंट का क्या मतलब होता है, फ्लुएंट एंड परसुएसिव। ठीक है, ना कि कंफ्यूजिंग, एंग्री और शॉर्ट, क्योंकि अगर कंफ्यूजिंग होती, एंग्री होती या शॉर्ट होती तो कोई भी चुप करके उसको ना सुनता, राइट? उसके बाद द साइंटिस्ट एक्सप्लेनेशन वाज एम्बिगुअस, लिविंग स्टूडेंट्स अनश्योर वेदर द रिजल्ट वाज सक्सेसफुल और नॉट। आप देखें वहां पर ये कह रहे हैं कि जो साइंटिस्ट की एक्सप्लेनेशन थी वो एम्बिगुअस थी, लिविंग स्टूडेंट्स अनश्योर। अब यहाँ से जो अनश्योर है दैट इज गोइंग टू गिव यू अ मेजर क्लू। वो बता रहा है कि स्टूडेंट्स को पता ही नहीं चल रहा था कि जो रिजल्ट वो निकालना चाह रहे थे वो निकला भी कि नहीं। तो इसका मतलब क्या होगा कि वो जो साइंटिस्ट ने एक्सप्लेनेशन दी थी वो अनक्लियर थी, कंफ्यूजिंग थी, समझ नहीं आई थी स्टूडेंट्स को उसकी।
तो हमारा क्या गैस हुआ? कंफ्यूजिंग एंड अनक्लियर। एम्बिगुअस का क्या मतलब होता है? व्हेन समथिंग इज कंफ्यूजिंग एंड इट इज अनक्लियर टू यू। उसके अलावा जैसे शी शोड रिजिलियंस बाय कंटिन्यूइंग हर स्टडीज डिस्पाइट फेसिंग रिपीटेड फेलियर्स। अब यहाँ पे आपको कितना ज्यादा क्लू मिल रहा है, डिस्पाइट फेसिंग रिपीटेड फेलियर्स। यहाँ से हमें पता चल रहा है कि उसको बहुत ही ज्यादा फेलियर्स का सामना करना पड़ रहा था, but despite this all failures and all the struggles and all the setbacks or challenges, she was like continuing her studies or she continued her studies। उसने अपनी स्टडीज को कंटिन्यू किया। तो उससे हमें क्या पता चलता है कि उसके अंदर कितनी मतलब कि ताकत है, रिजिलियंस है उसके अंदर, कि वो हालात से लड़ सकते हैं। शी कैन फाइट हर सर्कमस्टांसेस। ठीक है, उससे हमें क्या पता चला कि रिजिलियंस का क्या मतलब है? एबिलिटी टू रिकवर क्विकली, कि वो हालात की वजह से हार नहीं गई, रादर शी केप्ट ट्राइंग, राइट। तो दैट इज कि आप कैसे गैस कर सकते हो मीनिंग। नेक्स्ट 2 को हम छोड़ते हैं क्योंकि वीडियो काफी लंबी हो गई है। अच्छा, उनको आप पढ़िएगा, अगर आपको समझ ना आए तो यू कैन लेट मी नो। वैसे आंसर्स बता देती हूँ। आर्बिट्रेरी का मतलब होता है रैंडम विदाउट रीजन, और सेकंड था मेटिकुलस का मतलब होता है वेरी केयरफुल एंड प्रिसाइज। ठीक है। अच्छा, अब आपने कमेंट में मुझे बताना है कि जब आपने इनके मीनिंग गेस करने की कोशिश की तो विच वर द वर्ड्स इन द सेंटेंस दैट हेल्प्ड यू गेस द मीनिंग। उसके अलावा हम क्योंकि फ्रेजल वर्ब्स भी लर्न करने वाले हैं इन आवर कोर्स, क्योंकि फ्रेजल वर्ब्स आर वेरी वेरी आई थिंक सो दैट quick way to increase your vocabulary bank, because phrasal verbs contain a verb and alongside there would be a preposition and sometimes there would be a noun। एक हमारे पास verb होगा, there would be a noun या फिर preposition इसके साथ लगे होंगे and that will become a phrasal verb। मुझसे ये फायदा होगा कि the word that you already know you are able to convey another meaning by using the same word as well। एक word जो आपको ऑलरेडी आता है, ठीक है, उसी को यूज करके आप एक न्यू मीनिंग नेक्स्ट बंदे तक कन्वे कर सकते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल आपने हमेशा सुना होगा ब्रिंग, कोई चीज इधर ले आओ, ब्रिंग ले आओ इधर। ठीक है, लेकिन अगर आप ब्रिंग के साथ इन लगा दे, ब्रिंग वर्ब है उसके साथ इन लगा दिया, प्रेपोजिशन ब्रिंग इन। ब्रिंग इन का मतलब होता है अर्न करना, ठीक है, पैसे कमाना। तो अब जहाँ पे आप ये कहते हैं वांट टू अर्न मनी, आप वहां पे ये भी कह सकते हैं कि आई वांट टू ब्रिंग इन मनी। ठीक है, अब आप ये देखिए कि ब्रिंग से ऑलरेडी आपको पता था कि कोई चीज लाना, ब्रिंग इन से पता चल गया कि पैसे कमाना। तो एक छोटा वर्ड जो आपको ऑलरेडी आता था उसके साथ एक छोटा सा और प्रेपोजिशन या नाउन ऐड करके यू कैन कन्वे कंप्लीटली डिफरेंट मीनिंग। तो इससे आपका वोकेबुलरी बहुत जल्दी इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि ऑलरेडी जो वर्ड्स आपको आते हैं यू आर यूटिलाइजिंग दो सेम वर्ड्स टू कन्वे डिफरेंट मीनिंग। ठीक है, यहाँ पे जैसे ब्रिंग अप है इंट्रोड्यूस टॉपिक, किसी भी टॉपिक को आप मीटिंग के अंदर आपने इंट्रोड्यूस करवाया, उसको आपने मीटिंग के अंदर बताया कि ये वाला टॉपिक भी है। ठीक है, तो क्या है, शी ब्रॉट अप एन इम्पॉर्टेंट इशू इन द मीटिंग। ठीक है, और किसी ने भी नहीं किया, लेकिन उसने वो एक न्यू इशू जो है वो एक इम्पॉर्टेंट इशू था, दैट शी ट्राई टू डिस्कस और ब्रॉट अप इन द मीटिंग। इसी तरह फिगर आउट है अंडरस्टैंड करना, सॉल्व करना किसी चीज को। आई फाइनली फिगर्ड आउट द सोल्यूशन, फाइनली मुझे पता चल गया कि इसको मैंने कैसे जो है वो सॉल्व करना है। जैसे आप ये भी कह सकते हो कि वी नीड टू फिगर आउट द रीजन बिहाइंड इट। हमें ये कोशिश करनी है पता लगाने की, सर्च करने की कि इस चीज के पीछे रीजन क्या। ठीक है, पुट अप विद एक बहुत ही अच्छा वर्ड है दैट यू कैन यूज instead of using always tolerate, and it is going to diversify your vocabulary as well। कि जैसे अगर आपने कई बात करी, you are talking about patience, सबर की आप बात करें, तो you can't say again and again that tolerate the things। तो instead of repeating the same word और इस चीज से बाहर आने के लिए यू कैन समटाइम यूज पुट अप विद। वी शुड नॉट पुट अप विद इनजस्टिस, कि हमें इनजस्टिस को टॉलरेट नहीं करना चाहिए, बर्दाश्त नहीं करना चाहिए नाइंसाफी को, लाइक दैट। ठीक है, कट डाउन उनका मतलब होता है किसी चीज का इस्तेमाल आप उसको रिड्यूस कर दे। यू शुड कट डाउन ऑन शुगर, यू शुड कट डाउन ऑन फास्ट फूड, इस तरह करके आप इसको यूज कर सकते हैं। कम अक्रॉस का मतलब होता है जब आप एक्सीडेंटली किसी चीज, कोई चीज अचानक आपके सामने आ जाती है, आप किसी चीज से मिलते हो, अचानक किसी बंदे से भी मिल सकते हो। जैसे आई केम अक्रॉस एन ओल्ड फोटो यस्टरडे। ठीक है, ये जैसे आप ये कह सकते हो आई केम अक्रॉस माई टीचर फ्रॉम द कॉलेज यस्टरडे। ठीक है, तो इस तरह करके आप ये सारे वर्ड्स इस्तेमाल करेंगे एंड बिलीव मी दैट के देयर आर गोइंग टू बी आई थिंक सो दैट न्यूमरस न्यू थिंग्स फॉर यू, जो आपने पहले कभी सुनी भी नहीं होंगी, आपको पता भी नहीं होगा कि अच्छा ये चीज़ भी एग्जिस्ट करती है। एंड आई विल टेल यू द एग्जैक्ट राइट मेथड दैट यू कैन यूटिलाइज इन ऑर्डर टू बिकम अ बेटर इंग्लिश स्पीकर। ठीक है, क्योंकि रेगुलर आपके टेस्ट होंगे, वोकैबुलरी में आपको ऐसे याद करवाऊंगी कि कभी दोबारा भूले ना, बिकॉज दैट इज ऑल्सो
a problem of every Pakistani person that we know a lot of words, but when it comes to speaking, we forget them. हमें वो भूल जाते हैं. We go blank. We hesitate and we feel nervous. ये जो confidence, fluency, vocabulary का issue है, pronunciation, accent, each and everything is going to be solved only if you're going to show your commitment by joining the classes, being regular in the classes. Mean to say that you have to stay punctual, and apart from it, you have to perform the task. That is all that you need to do. Follow the guidelines, take classes, perform the task. These are only three things that I want from you, and the results are going to be into your pocket. That is my grunty. अच्छा, तो उसके अलावा ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इनलार्जिंग सेंटेंसेस. ये भी बहुत ही अच्छा टॉपिक है अकॉर्डिंग टू माय पॉइंट ऑफ व्यू, because when we have to speak, we don't always speak like I go to school, they come to meet us, and we have to go to the party. So all the time we are not speaking with these very simple, easy and childish sentences कि जो एक बच्चा भी बोलता है. ठीक है, तो मैं आप लोगों को सिखाऊंगी कि हाउ वी कैन मेक वेरी गुड अट्रैक्टिव इंप्रेसिव सेंटेंसेस बाय यूजिंग एडजेक्टिव्स, एडवर्ब्स, क्लॉजेस एंड फ्रेजेस. नाउ आई एम स्किपिंग दिस आउट बिकॉज टाइम इज रनिंग आउट एंड आई डोंट वांट कि बहुत लंबी वीडियो हो जाए. तो ये मैं आपको क्लास में चीज़ें सिखा दूंगी, and it is going to be the most, I think so, that captivating activity that you people can ever do. क्योंकि इससे आपको इतना बेनिफिट होगा कि जो वर्ड्स आपको ऑलरेडी आते हैं दे विल बी यूटिलाइज्ड, एंड इन दिस वे यू आर गोइंग टू रिड्यूस द टाइम और द फ्रीक्वेंसी ऑफ फॉरगेटिंग देम. कि जितना आप ये सेंटेंस बनाने की एक्टिविटी करेंगे, जितने वर्ड्स आपको आते होंगे उनको, जो हमें समटाइम्स लाइक वाइल स्पीकिंग वी फॉरगेट देम, वो आपकी जो चीज़ उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो कम हो जाएगी. आपको वो भूलना कम हो जाएंगे, और ज़्यादातर यही होगा कि आप उनको भूलेंगे नहीं, वो आपको याद रहेंगे और आप बहुत ईजी होके आप उसको कम्युनिकेट कर सकते हैं. तो ये मैंने बहुत ईजी करके आपके लिए ऐड किया हुआ. एनीवेज, अगर कोई चीज़ हो जिसकी आपको समझ ना आई हो तो यू पीपल कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन और यू पीपल कैन व्हाट्सअप मी. तो जो कोर्स की इन्फॉर्मेशन है ये है कि 3 मंथ्स ड्यूरेशन है, 3 क्लासेस पर वीक होंगी, मंडे टू फ्राइडे टू संडे होगी, सॉरी. क्लास ड्यूरेशन 1 आवर है. गूगल मीट के जरिए हम क्लासेस करेंगे, रेगुलर प्रैक्टिस होगी, रेगुलर असेसमेंट होगी, और रिकॉर्डिंग हम अवेलेबल मैं नहीं करूँगी कि देखिए 1 घंटे की रिकॉर्डिंग कौन देखेगा बैठ के, राइट. सो आई डोंट वांट कि मैं एक दफ़ा रिकॉर्डिंग करूँ, देन आई हैव टू अपलोड ऑन माई गूगल ड्राइव एंड देन आई हैव टू शेयर, और फिर लोग देखें भी ना. सो लेकिन ये हो सकता है कि मैं यूट्यूब पे वो लेक्चर रिकॉर्ड कर किस तरह अपलोड कर दूँ, बट दैट इज़ नॉट, वी कैन से दैट फैमिली डिसाइडेड येट. अभी इसका मुझे इतना कोई कंफर्म नहीं है, बट लेट सी व्हाट इज गोइंग टू हैपन. बट आई विल रिवाइज प्रीवियस लेक्चर एवरी इन आवर नेक्स्ट क्लास. जो फ्राइडे को लेक्चर होगा, सैटरडे में पहले वो रिवाइज करवाऊंगी, एंड आफ्टर दैट, क्योंकि इससे रिवीजन से बहुत ज़्यादा फायदा होता है. क्योंकि हमने बस ये नहीं है कि बस आगे पढ़ते जाना, वी हैव टू लर्न इट. ठीक है, किसी चीज़ को बस यू आर रीडिंग इट, यू आर गेटिंग इट, दैट इज कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम लर्निंग इट. लर्निंग का मतलब ये होता है कि यू आर गोइंग टू लाइक मेमोराइज इट. और यहाँ पे मैं कोई आपको रट्टे नहीं लगवाऊंगी. मेमोराइजेशन का मतलब ये है कि जो मैं आपको सिखाऊंगी वो मैं आपसे इस्तेमाल भी करवाऊंगी. ठीक है, हमारा इंग्लिश में यही मसला होता है, वी लर्न डिफरेंट रूल्स एंड देन वी डोंट अप्लाई इट, वी डोंट प्रैक्टिस दैट. ये सारी चीज़ें हम अपने जो हमारा कोर्स उसके अंदर करेंगे. मेल्स एंड फीमेल्स के लिए सेपरेट ग्रुप्स होंगे, और फी आपकी ओनली 1500 है, और 1500 के अंदर आप देखेंगे कि यू आर गोइंग टू लर्न इमेंस. ठीक है, ओके. सो इफ देयर इज एनी क्वेश्चन, पीपल कैन जस्ट आस्क मी, एंड देन इंशाल्लाह वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर कोर्स फ्रॉम दिस फ्राइडे. ओके, अल्लाह हाफिज़ एवरीवन.